أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 78 से आयत नंबर 100 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई और ये हमारा सूरतुल मुमिनून का चौथा सबक है। अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह सूरतुल मुमिनून हमारी मुकम्मल हो जाएगी
اور آئندہ پیر کو اللہ نے چاہا تو سورۃ النور کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو آسان بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ قرآن مجید کو مکمل کرنے اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ تو پہلی جو آیات ہے وَهُوَ الَّذِي، اس کا ترجمہ ان آیات کا کرنا میرے خیال میں آپ سب کے لیے آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ، اور وہ وہی ذات ہے، الَّذِي، جس نے، انشأ، انشأ ينشئ، انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان کو، والابصار، اور آنکھیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں پیدا کیے۔ والافئدہ، افئدہ کا معنی ہوتا ہے قلیلا، بہت ہی کم ہے، تشکرون، تم سب شکر ادا کرتے ہو، بہت ہی کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وہوا، اور وہ وہی ذات ہے جس نے ذرا، ذرا کا معنی ہوتا ہے پھیلایا، ذرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، جس نے پھیلا دیا کم تمہیں، فی الارض، زمین میں، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَهُوَ، اور وہ وہی ذات ہے، الذی، جس نے، یحیی، جو، یحیی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور جو موت دیتا ہے، وہ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے، وَلَهُ، اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کے قبضے میں ہے، اختلاف اللیل والنہار، دن رات کا بدلتے رہنا، یعنی اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، رات اور دن کو مختلف کرنا، بدلنا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم نہیں سمجھ رکھتے؟ بل، بلکہ، قالو، انہوں نے کہا، مثلا، اس کی مثل، ما قال، جو کہا تھا الاولون، پہلوں نے، اس کے بجائے یہ لوگ بھی ویسے ہی باتیں کرتے ہیں جیسے پچھلے لوگوں نے کی تھی، بلکہ کہا ان لوگوں نے مثل اس کے جو پہلے لوگوں نے کہا تھا، یعنی جو قول پہلے لوگوں نے اختیار کیا تھا اسی طرح ان لوگوں نے بھی بات کی۔ وہ کیا بات تھی؟ قالو، ان سب نے کہا، وہ سب کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، اِذَا مِتْنَا، اِذَا، کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا، کیا واقعی ہم، لمبعوثون، ضرور سب اٹھائے جائیں گے، کیا ہم سب کو ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی انہوں نے کہا کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے
तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? हमें दोबारा उठाया जाएगा। लक़द वुइदना बिला शुबह यकीनन वुइदना, हमारे साथ वादा किया गया। वुइदना नहनु, वुइदना नहनु, कि हमसे वादा किया गया। वुइदना नहनु, हमसे वादा किया गया है, हम वादा दिए गए हैं या हमसे वादा किया गया है। वाबाउना, और हमारे बाप दादा से भी। हादा, ये, मिन कब्ल, इससे पहले। इन हादा, नहीं है ये, इल्ला असातीरुल अव्वलीन, मगर किस्से कहानियां पहले लोगों की। ये वो यकीन दहानी है जो हमसे भी की गई है और इससे पहले हमारे बाप दादों से भी की गई थी। इसकी कोई हकीकत इसके अलावा नहीं है कि ये पिछले लोगों के बनाए हुए अफसाने हैं। इससे बेशक हमसे वादा किया गया है, हमारे आबा और अजदाद से भी इस बात का इससे पहले वादा किया गया, लेकिन नहीं है मगर ये इससे कहानियां पहले लोगों की। कुल, आप कह दीजिए, लिमनिल अर्जो, किसकी है ये जमीन, वमन फीहा, और जो कुछ इस जमीन में है। ये सारी जमीन और इसमें बसने वाली जो चीजें हैं वो किसकी है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। जरा ये बताओ तो सही कि भाई ये जो जमीन है और जमीन में जो कुछ है ये आखिर किसकी है, अगर तुम जानते हो। सयकूलूना, अन करीब जरूर वो सब कहेंगे, लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। कुल, फिर आप कह दीजिए, फला तज़क्करून, तो क्या तुम सब नसीहत हासिल नहीं करते, या फिर भी तुम सबक नहीं लेते। कुल, आप कह दीजिए, मर रब्बुस समावाति सबअ, कौन है रब सातों आसमानों का, व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और बहुत बड़े अर्श का। कौन है रब सातों आसमानों का और बहुत बड़े अर्श का। सयक़ूलून, वो अन करीब जरूर कहेंगे, अल्लाह ही है, अल्लाह ही के लिए है ये सब। कुल, आप कह दीजिए, अफला तत्तकून, तो क्या तुम सब नहीं डरते। कुल, आप कह दीजिए, मन बियदी है, मन कौन है, बियदी ही, कि उसके हाथ में है, मलकूत कुल्ल शै, हर चीज की बादशाहत, हर चीज का मुकम्मल इख्तियार जिसके हाथ में है वो कौन है। वह हुआ युजीरो, और वो पनाह देता है। वला युजारो, और नहीं पनाह दी जा सकती है, अलैहि, उस पर, इन कुन तुम तालमून, अगर तुम सब लोग जानते हो। यानी वो पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती अगर तुम सब जानते हो। सयक़ूलून, अन करीब, वो जरूर कहेंगे, लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए है ये सारी कुव्वत। कुल, आप कह दीजिए, फअन्ना तुसहरून, फिर कहाँ, तुसहरून, तुम सब जादू, आप कह दीजिए फिर तुम पर कहाँ जादू किया जा रहा है। फअन्ना तुसहरून, फिर तुम पर कहाँ जादू किया जा रहा है। बल, बल्कि अतैनाहुम, हम लाए हैं उनके पास, बिलहक, के हक, व इन्नहुम लकादिबून, और बेशक वो यकीनन सब झूठ बोलने वाले हैं, और बेशक वो सब यकीनन झूठ बोलने वाले हैं। मत्तखज़ल्लाहु, नहीं बनाई अल्लाह ताला ने, मिन वलदिन, कोई औलाद, वमा कान माअहू, और नहीं है उसके साथ, मिन इलाहिन, कोई माबूद। इज़ल लज़हबा, उस वक्त जरूर ले जाता, कुल्लु इलाहिन, हर माबूद, उस वक्त जरूर ले जाता हर माबूद, बिमा खलका, उसको जो उसने पैदा किया। वला अला बादुहुम अला बाद, और जरूर चढ़ाई करता उनमें से बात बात पर। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, अम्मा यसिफून, उससे जो वो सब बयान करते हैं। मतलब ये ना तो अल्लाह ताला ने कोई बेटा बनाया है, ना उसके बाद कोई और खुदा है। अगर ऐसा होता तो हर खुदा अपनी मखलूक को लेकर अलग हो जाता, फिर वो एक दूसरे पर चढ़ाई कर देते। पाक है अल्लाह ताला इन बातों से जो ये लोग बनाते हैं। आलिमिल गैबी, जानने वाला है गैब का, व शहादती, और हाजिर का। फतआला, पस वो बहुत बुलंद है उससे जो युश्रिकून, वो सब शरीक बनाते हैं। कुल, आप कह दीजिए, रब, मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी, अगर वाकई तू दिखाए मुझे, मा युअदून, जो वो सब वादा दिए जाते हैं। यानी
को वो अजाब अगर दिखा दिया जाए कि जिस चीज का उनसे वादा किया जाता है, अगर वो वाकई दिखाए मुझे उस चीज को जिनका उनके साथ वादा किया जाता है, कुल रब्बी, ए मेरे रब, फला तजालनी, मुझे मत बनाना, मुझे मत शामिल करना, फिल कौम ज़ालिमीन, जालिम लोगों में से, मुझे जालिम लोगों में शामिल ना फरमाना। व इन्ना अला, और बेशक हम, अला उस पर, अन नुरिया का, कि हम दिखाएं आपको, मा नइदुहुम, जो हम वादा करते हैं उनसे, लकादिरून, जरूर कुदरत रखने वाले हैं। व इन्ना अला, व इन्ना लकादिरून, असल में तर्जुमा कैसे करेंगे, व इन्ना लकादिरून, और बेशक हम जरूर कुदरत रखने वाले हैं, अला अन नुरिया कमा नइदुहुम, उस चीज पर कि जो हम वादा करते हैं उनसे वो हम आपको दिखा दें। इदफा, आप हटाइए, बिल्लती, उससे जो, ही अहसन, बहुत अच्छा हुआ, सय्या, बुराई को, कि तुम बुराइयों को हटाओ ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। नहनु अअलम, बेशक हम खूब जानने वाले हैं, बिमा यसिफून, उसको जो वो सब बयान करते हैं। वकुल, और आप कह दीजिए, रब्बी, है मेरे परवरदिगार, अऊज़ु बिका, मैं पनाह में आता हूँ, बिका, आपके, मिन हमज़ाति शयातीन, शयातीन के वसवसों से, व अऊज़ु बिका, और मैं पनाह में आता हूँ, बिका, आपके पास, रब्बी, है मेरे परवरदिगार, अन यहज़ुरून, कि वो सब हाजिर हो मेरे पास, हत्ता, यहाँ तक कि जब जा आएगी, अहदहुम, उनमें से किसी एक के पास, अलमौत, मौत, कौला, वो कहेगा, रब, मेरे परवरदिगार, इरजिऊनी, मुझे वापस भेजो, लअल्ली, ताकि मैं आमलू, मैं अमल करूँ नेक, फीमा, उसमें, जिसे तरक तुम्हें छोड़ आया हूँ, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना कलिमतुन, बेशक वो एक बात है, वक़ाइलुहा, वो कहने वाला है उसका, वमिन वराइहिम, और उनके पीछे से, बरज़खुन, एक पर्दा है, इला यौम युबअसून, उस दिन तक कि वो सब उठाए जाएंगे। तो ये इन आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने बयान कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो अभी दोबारा तवज्जो से सुनिएगा, तो इंशाल्लाह सारी बात जो है वो समझ आएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए, फिर आप आखिर में सवाल करके पूछ सकते हैं कि ये बात समझ नहीं आई, दोबारा समझा दीजिएगा। ठीक है जी, अब तक सबको तर्जुमा समझ में आ गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले नाफरमानी करने वाले लोगों का हाल बयान किया, उनकी सरकशी का जिक्र किया कि उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की, उनको अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत मिलती रही, लेकिन वो कुफ्र और शिर्क में ही मुब्तला रहे, इसरार करते रहे। अल्लाह ताला ने उनको कई मरतबा तंबीह भी की, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। फिर अल्लाह ताला ने उन पे अजाब का एक मुस्तकिल दरवाज़ा खोल दिया, इन मुसलमानों को कुफार के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म दिया। इब्तिदा में तो कुफर और इस्लाम का बड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुफार जो है मगलूब होते चले गए। फिर आखिर में बड़े बड़े सरदारान कुफर जो है वो मारे गए, बाकी उन्हें इस्लाम कबूल किया। तो इस तरह कुफार मायूस होकर बैठ गए। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने तौहीद और माद का इकट्ठा जिक्र किया। अल्लाह ताला ने ऐसे दलाइल बयान फरमाए जिनमें एक तरफ अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील पाई जाती है, तो दूसरी तरफ क़यामत के वाक़े होने का सबूत मिलता है। तौहीद के अक़ली और नकली दलाइल पिछले असबाक में बयान हो चुके हैं। अब यहाँ भी अल्लाह ताला ने बाज़ अंदरूनी और बैरूनी मुशाहदात के ज़रिए अपनी तौहीद पे दलील कायम की है।
क़यामत के वक़ू से मुताल्लिक कुफ़ार और मुशरिकीन का इनकार तीसरे रुकू में गुजर चुका है। वो कहते थे कि हमारी मौत और हयात तो इसी दुनिया तक महदूद है, इसी में हम मरते और जीते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आज के सबक में भी कुफ़ार का इसी किस्म का इंदिया ज़ाहिर किया गया, जिसमें उन्होंने मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार किया है। अल्लाह ताला ने इस किस्म के नज़रिया का रद्द फरमाया। अंदरूनी दलाइल कुदरत में से अल्लाह ताला ने इंसान के बाज़ हवास ज़ाहिरा का जिक्र फरमाया। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा, कि अल्लाह ताला तो वो रहीम करीम ज़ात है, इसने तुम्हारे लिए कान, आँख ये बनाए। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये इंसान के जो कान है, ये मालूमात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर कोई सुन ना सकता हो तो इंसान को बहुत सी मालूमात हासिल नहीं हो सकती। अगरचे मुशाहिदे के ज़रिए भी कुछ ना कुछ मालूमात हासिल होती है, लेकिन इल्म का असल ज़रिया क़ुव्वत समाअत ही है। कानों के ज़रिए ही वाज़ व नसीहत की बातें सुनी जाती है, जिन पे अमल किया जाता है। बुराई की बातें इसी के ज़रिए, गाने बजाने भी इन्हीं कानों के ज़रिए सुनते हैं, जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कानों और आंखों का जिक्र बहुत से मकामात पे किया। असल में इनकी इफादियत को ज़ाहिर किया और इन कुव्वा को दलाइल कुदरत के तौर पे बयान किया। इमाम राजी और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने इस बात में बहस की है कि इंसान के लिए कानों की अहमियत ज़्यादा है या आंखों की। अगर कुव्वत समाअत मौजूद है तो आंखों के बगैर भी इंसान बहुत कुछ मालूम हासिल कर सकता है, अच्छाई और बुराई में तमीज़ कर सकता है। लेकिन अगर कुव्वत समाअत ख़त्म हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। आंखें भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जिनके ज़रिए मुख्तलिफ शक्लों और रंगों में इम्तियाज़ किया जाता है। आंखों के बगैर पूरा जहान जो है वो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां अपनी दीगर नेमतों का जिक्र किया, वहां आंखों की नेमत का भी एहसान जतलाया है। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान को दो आंखें नहीं दी, जिनके जरिए अच्छाई और बुराई में इम्तियाज करते, इनके जरिए अल्लाह की किताब और दीगर दीनी किताब कुतुब का मुताला करते, जिनसे फिक्र पाक होती, अमाल में इखलास पैदा होता। अगर फिर भी कोई कमी रह जाती तो वलिसान व शफतैन, तो हमने जुबान और दो होंठ भी दिए। उनको इस्तेमाल करके किसी भी अहले इल्म से पूछा जा सकता है, लेकिन अक्सर लोग ना तो आंखों से सही काम लेते हैं, नेक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जुबान को भी नेक मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जुबान से झूठ बोलना, गालियां देना, ये तो इसका गलत मसरफ है। गीबत करना, तोहमत लगाना अल्लाह ताला की इस नेमत की नाशुक्री के मुतरादिफ है। आंखों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन इज़ा अखज़तु करीमतै, अगर मैं किसी शख्स की दो इज्जत वाली चीजें यानी आंखें तलब कर लूं और वो उस पर सब्र कर ले, तो मैं उसमें जन्नत में पहुंचाए बगैर किसी चीज पे राजी नहीं होऊंगा। तो बहरहाल कान और आंख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं, जिनका जायज मसरफ में इस्तेमाल अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला की वही ज़ात है जिसने कान, आंखें, वल अफ़ीदता और दिल अता किए। अरबी ज़ुबान में फुआद दिल को कहते हैं, और ये वही चीज़ है जिसको इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह अक्ल से ताबीर करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इदराक का मादा दिल में मानते हैं, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इदराक उसका मादा दिमाग में है। लेकिन ये दोनों आज़ा आपस में मरबूत है। जिस तरह दिल के बगैर दिमाग काम नहीं कर सकता, इसी तरह दिमाग भी दिल के बगैर बेकार है। ये बात तो दुरुस्त है कि इंसान की सोच और समझ का ताल्लुक अकल से है, मगर कुव्वत अमलिया अल्लाह ताला ने दिल में रखी है।
قلب کی منشا کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر اچائی، برائی، عقیدے اور اخلاق کا مرکز جو ہے دل کو بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر انسان کی سینے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے بلکہ مرکز اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور بھی دل میں ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی کا مرکز بھی دل ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو دل ہے، اگر یہ درست ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ تو کان، آنکھ اور دل کی نعمتوں کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی آتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں یہ عظیم نعمتیں عطا کی تھی، تم نے ان کو کس طرح استعمال کیا؟ میں نے تمہیں یہ بہت بڑی نعمتیں عطا کی تھی، لیکن افسوس قلیلا ما تشکرون کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ شکر تو یہ تھا کہ ان قوہ کے ذریعے، ان اعضاء کے ذریعے اچائی کی باتیں حاصل کرتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے، برائی سے نفرت کرتے۔ مگر تم نے اس کے برخلاف دوسری باتوں کو کانوں میں جگہ دی، کانوں کے ذریعے بےہودہ باتیں، قصے، کہانیاں، گانے وغیرہ سنے۔ تمہیں تو قرآن مجید سننا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان سننے چاہیے تھے، نیکی کی دوسری باتوں کو کانوں میں جگہ دینی چاہیے تھی، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیے، غلط نگاہ ڈالی، صحیح بات کو سننے کی توفیق نہیں ہوئی، قلب کے ساتھ نیکی کے بجائے برائی کا ارادہ کیا، دل میں ایمان، توحید اور نیکی کو جگہ دینے کے بجائے کفر، شرک، نفاق، بدعت اور رسومات باطلہ کو جگہ دی۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ شکر گزاری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس کے صحیح مقام پہ استعمال کیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عمر بھر تو آنکھوں سے کوئی مفید کام نہیں لیا، مگر مرتے وقت وصیت کر دی کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی نابینا کو لگا دی جائے۔ ساری عمر کسی اندھے سے اس نے سلوک نہیں کیا، تو مرنے کے بعد تمہیں آنکھیں دینے سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ کرنے کا کام تو یہ تھا کہ اپنی زندگی میں نابیناؤں کی بھلائی کے لیے کوشش کرتی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ولید بن عبد الملک نے یہ کام سر انجام دیا تھا، جو بادشاہ گزرا ہے اس نے ہر نابینا آدمی کو ایک خادم مہیا کیا تھا، اور اس کی ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض نابینا حضرات نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، اور پھر یہ نابینا جو ہے یہ پھر بہت خدمت بھی کرتے ہیں۔ یہ مصر کے ایک عالم تھے طہ حسین کے نام سے، عربی ادب میں ان کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، نابینا تھے، بہت سی کتابیں لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن اسی حالت میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد کسی کو آنکھیں یا کوئی دوسرا عضو دے دینا یہ کوئی خدمت نہیں ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اعضاء کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، وصیت کی جاتی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ جسم جو ہے ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو واپس پہنچانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا،
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے انسانی آبادی کو دنیا کے مختلف خطوں میں بکھیر دیا۔ ہر خطے کی آب و ہوا کا اثر اس کی آبادی پہ بھی پڑتا ہے، جس کا اثر رنگ، صحت اور شکل و صورت میں واضح ہوتا ہے۔ گرم اور سرد علاقوں کی اپنی اپنی ضروریات اور اپنے اپنے وسائل ہوتے ہیں، اسی طرح میدانی اور پہاڑی علاقوں کے لوگ، ان کے اپنے اپنے اطوار اور اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہے۔ ہر خطے کے لوگوں کو اپنے اپنے علاقے اور وطن سے محبت ہوتی ہے، پورے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کا نتیجہ ہے کہ ہر قوم اپنے اپنے مقام پر مطمئن ہے، اور پھر یہ کہ کوئی انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی گزارے، مرنے کے بعد اسے باہر اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہ اپنی بارگاہ میں ہر رنگ اور نسل اور ہر ملک اور قوم کے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے جب تک اسے منظور ہوتا ہے۔ انسان زمین پہ زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب اس کی منشا ہوتی ہے تو اس کی زندگی واپس لے کے موت اسے دے دیتا ہے۔ تو گویا موت و حیات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے کو نہیں دیا، یہ بھی اس کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات کے اختلاف یعنی نظام شمسی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مقررہ طریقے کے مطابق رات اور دن کو آگے پیچھے لاتا ہے۔ اس نے دن رات کے ذریعے دنوں کی گنتی کا حساب رکھا ہے۔ ایک دن رات 24 گھنٹے مکمل ہوتا ہے، ہفتہ 7 دن میں، مہینہ 30 دن میں، اور سال 12 مہینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تقویم مقرر کر رکھی ہے جس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا، اور تمام لوگ اسی رات اور دن کے حساب سے معمولات زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ وہ اکیلی ذات ہے، تو پوری کائنات کا نظام جو ہے اچھے طریقے سے چلا رہی ہے، اور جس میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل اور شواہد کے باوجود اگر کوئی اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں لاتا تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ان قدرت کے دلائل پہ غور اور فکر کر سکو؟ ان تمام حقائق کی وضاحت کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کی بجائے بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے لوگوں نے کی تھی۔ پرانے زمانے کے کفار اور مشرکین نے بھی قدرت کے دلائل کو دیکھنے کے باوجود توحید باری تعالیٰ اور قیامت کا انکار کیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ کہنے لگے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو جائیں گی؟ سورہ نازعات میں ہے اذا كنا عظاما نخرة، کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کے بری بری ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ جو ہے تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا، مگر ہم نے تو آج تک کسی کو مر کے دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے اس دعویٰ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم شیروں سے سنتے آئے ہیں، مگر ان کی عملی شکل کبھی نہیں دیکھی۔ کہتے تھے کہ وقوع قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر نشر، جنت دوزخ، یہ سب کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نزول قرآن کے زمانے کے کافر اور بعد والے کافر سب ایسے ہی کہتے آئے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ مذکورہ تمام مشاہدات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ جب وہ قادر مطلق اور وحدہ لا شریک ہے تو پھر وہ وقوع قیامت پہ بھی قادر ہے، اور یہ قیامت واقع ہو کے رہے گی۔ تو اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے
कई मकामात पर कुरान मजीद में मुख्तलिफ उन्वानात से बयान फरमाया। तो फिर दलाइल तौहीद के ज़मन में इरशाद होता है कुल लिमन अल अर्ज़ व मन फीहा। ऐ पैगंबर आप इन कुफ़ार और मुशरिकीन से कह दीजिए कि ज़मीन और इसमें मौजूद हर चीज़ किसकी मिल्कियत है। इस ज़मीन पर मखलूक खुदा आबाद है, इसी में पैदा होते हैं, कारोबार करते हैं, चलते फिरते हैं, मकानात बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और अपने लिए रोज़ी का सामान पैदा करते हैं। लेकिन ये बताओ ये इतना बड़ा ज़मीन का हिस्सा ये आखिर किसकी मिल्कियत है, यानी इसको पैदा किसने किया, इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है। इनको तुम तालमून अगर तुम जानते हो इस सवाल का जवाब दो। तो अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब में फरमाया सयक़ूलूना लिल्लाह, इन लोगों का जवाब यही होगा कि ज़मीन और माफ़िया की मिल्कियत अल्लाह ताला ही की है, वही इसका खालिक है, वही इसका मुतसरिफ है। कुल आप फरमा दीजिए अफला तज़क्करून, फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते, अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार क्यों करते हो, वक़ूअ क़यामत पे ईमान लाने से क्यों हिचकिचाते हो। फिर दलाइल तौहीद के हवाले से दूसरा सवाल किया जा रहा है कुल मन रब्बुस समावाति सबअ, ये तो बताओ सातों आसमानों का परवरदिगार कौन है, वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम का मालिक कौन है। इसके जवाब में भी कुफ़ार मुशरिकीन यही कहेंगे सयक़ूलूना लिल्लाह कुल अफ़ला तत्तक़ून, ये चीज़ें भी अल्लाह ही की है, वही इनका खालिक मालिक और मुतसरिफ है। तो अगर ये बात है फ़ला तत्तक़ून, तो फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। जब तुम हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला को मानते हो तो फिर उसके साथ शरीक ठहराते हुए तुम्हें खौफ क्यों नहीं आता। ये तो बड़ी गुस्ताखी की बात है। यहाँ पर इश्काल पैदा होता है कि आसमानों को तो हर काफिर मुश्रिक और मुल्हिद भी मानता है और मानता था, उन्होंने इकरार किया कि इनका मालिक अल्लाह ही है, मगर ये लोग अर्श इलाही से तो वाकिफ नहीं थे, फिर उन्होंने उसके मुतालिक कैसे तस्लीम कर लिया कि ये भी अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं आसमानी कुतुब का इल्म रखने वाले यहूद और नसारा वो तो अर्श अजीम से भी वाकिफ थे, क्योंकि इसका जिक्र उनकी अपनी किताबों में मौजूद था। उनसे सुन के मुश्रिक भी जानते थे कि सातों आसमानों के ऊपर अर्श इलाही भी है और वो ये भी जानते थे कि उसका मालिक भी अल्लाह ही है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अर्श अजीम से मुराद वो अर्श नहीं है जिस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है, बल्कि इस मकाम पर इससे मुराद सुल्तनत उज़्मा है। वो लोग छोटी छोटी रियासतों, इलाकाई मुल्क और सलातीन का तस्वुर तो रखते थे, मगर पूरी कायनात यानी सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका जवाब भी उन्हें यही देना पड़ता कि सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक और मुतसरिफ भी अल्लाह है। फिर तीसरा सवाल ये उठाया कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून। ऐ पैगंबर आप इनसे पूछे क्या चीज का तसर्रुफ और इख्तियार किसके हाथ में है। मलकूत ये मुबालगी का सीगा है, सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलकूत, वो कौन है, वह हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, जो पनाह देता है उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता। मतलब ये है कि जिसको चाहे अपनी पनाह और हिफाजत में ले ले, कोई दूसरी ज़ात इस मामले में दखल नहीं दे सकती, और अगर वो किसी को सज़ा देना चाहे तो कोई ज़ात ऐसी नहीं जो उसे अपनी पनाह में देकर उसको सज़ा से बचा ले। तो इस सवाल का जवाब दो इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। फरमाया काफिर और मुश्रिक भी इसका जवाब यही देंगे सयक़ूलून लिल्लाह, ये तो अल्लाह ही की सिफात है, वो जिसे छोड़ना चाहे उसे कोई पकड़ नहीं सकता और जिसे पकड़ना चाहे उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। फरमाया अगर ये बात है कुल फअन्ना तुसहरून, तो ऐ पैगंबर आप उनसे कह दीजिए कि तुम पर कहाँ जादू किया जा रहा है, तुम होशो आवाज क्यों खो बैठे हो, क्यों इधर उधर भटक रहे हो। इन हक़ाइक़ का इल्म होने के बावजूद तुम तौहीद और माद का इनकार किस बुनियाद पे कर रहे हो। हकीकत तो ये है बल अतैनाहुम बिलहक़ व इन्नहुम लकाज़िबून, हम इनके पास सच्ची बात ले आए हैं, यानी हमारा पैगंबर इनके पास खुदा की सच्ची किताब और सही प्रोग्राम लेके आया है। तौहीद माद बिल्कुल बरहक है,
मगर वइन्नहुम लकाज़िबून, झूठे यही है जो बातिल ख्यालात की पैरवी करके अल्लाह की सच्ची नबी की मुखालफत कर रहे हैं, उसे शायर काहिन और शायर का लक़ब देते हैं, और ये अपनी इस दावा में सरासर झूठे हैं। ये लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे गलत अकीदे बना के बैठ गए हैं। ये ना तो अल्लाह ताला की कुदरत को समझते हैं, न उसकी हिकमत को, बल्कि बिला वजह हक की मुखालफत कर रही हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने एक दूसरे जाविया निगाह से तौहीद पे दलाइल जो है वो कायम की है। मत्तखज़ल्लाहु मिन वलद, अल्लाह ताला ने किसी को अपना बेटा नहीं बनाया और न ही उसका कोई हकीकी बेटा है। ये तो मखलूक की सिफात है। अल्लाह ताला इनसे पाक है, वो बेनियाज है, वो तो मखलूक से वरा उल वरा है। लैसा कमिस्लिही शै, वो बेमिसल बेमिसाल है। ये तो ईसाइयों का बातिल अकीदा है कि अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया है और वो सिफारिश करके लोगों को अल्लाह के कहर से बचा लेंगे और लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। तो फरमाया वमा कान माअहु मिन इलाह, अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद नहीं है जो कादिर मुतलक आलिम कुल अजली और अबदी हो। अगर बिलफर्ज कोई दूसरा इलाह होता, इज़ल लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा खलक, तो हर इलाह अपनी अपनी पैदा करदा चीज़ों को लेकर अलग होता जाता और वो अपनी अपनी जुदा सल्तनतें कायम कर लेते। अगर बहुत से माबूद होते तो जाहिर है उनमें से हर एक दूसरे पे तसल्लुत जमाने की कोशिश करता और अपनी सल्तनत को वसीतर करने की कोशिश करता। सूरह अंबिया में गुजर चुका है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी होता तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता। ये तो आम सी बात है कि एक चौंबड़ी में 10 फकीर तो आ सकते हैं, मगर एक सल्तनत में 2 बादशाह जमा नहीं हो सकते। उनमें से हर कोई दूसरे से बढ़ने की कोशिश करेगा, तो इस तरह फितना और फसाद का बाजार गर्म हो जाएगा। और अगर उन दो में से एक बाइख्तियार और दूसरा कमज़ोर है, तो फिर भी इला एक ही होगा। कमज़ोर तो इला बनने का हल नहीं होगा। तो बहरहाल मालूम हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आगे एक और नुकता भी बयान फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरा माबूद होता, वलअला बअदुहुम अला बअद, तो एक इलाह दूसरे पे गालिब आने की कोशिश करता, एक माबूद दूसरे पे चढ़ाई कर देता, जैसा कि दुनिया के आम सलातीन का दस्तूर है। फरमाया इस तरीके से भी अमन जो है ख़त्म हो जाता, कायनात शर और फसाद का मैदान बन जाती। तो फरमाया सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, अल्लाह की ज़ात पाक है उन चीज़ों से जिनको वो उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अल्लाह ताला का न कोई हकीकी बेटा है, न मुंह बोला है, न ही खुदा ने किसी को अपने इख्तियारात दे रखे हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ में बेमिसल और बेमिसाल है। न उसकी ज़ात में कोई शरीक है, न सिफ़ात में, न तसर्रुफ़ में, न तदबीर में, न खल्क में, न रबूबियत में। वो वहदहू ला शरीक है और मुशरिकों की बयान करदा कमज़ोरियों से पाक है। आलिमुल गैबि व शहादा, वो गायब और हाजिर सबको जानने वाला है। दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात से तो कोई चीज़ गायब नहीं है, उसका अपना फरमान है। वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समा, तेरे परवरदिगार की निगाहों से तो एक ज़र्रा भी गायब नहीं। तो यहाँ पर गायब से मुराद वो चीज़ें हैं जो मखलूक की निगाह से ओझल है, मसलन जिन्नात, फरिश्ते, सादत, शकावत। तो अल्लाह ताला हर ज़ाहिर और बातिन चीज़ को जानता है, वो अलीम कुल है, उसकी ज़ात से कोई चीज़ मख्फी नहीं है, वो आलम महसूसात और आलम गैर महसूसात सबको जानने वाला है। फ़तआला अम्मा युश्रिकून, तो अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद और बरतर है उन चीज़ों से जिनको ये अल्लाह का शरीक बनाते हैं। अल्लाह ताला की सिफ़ात गैर महदूद है, जबकि इंसान का इल्म और समझ जो है वो महदूद है। इंसान हर तरह से मोहताज है। जब हकीकत ये तो फिर मखलूक को अल्लाह की सिफत में या उसकी इबादत में शरीक करना ये सबसे बड़ा जुल्म। इंसान को शिर्क से हर हालत में बचना चाहिए कि मुशरिक की निजात नहीं है।
बात समझ आ गई? फिर उसके बाद फरमाया कुर रब्बी मा तुरियन्नी मा युअदून, कि बाज़ औक़ात मुनकिरीन जो है उनकी हद से ज़्यादा सरकशी देख कर पैगम्बर को भी ख्याल आता था कि ये बदबख्त गिरफ्त में क्यों नहीं आते। तो ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने अपने नबी की इस तरह रहनुमाई फरमाई, कुर रब्बी मा तुरियन्नी मा युअदून, ऐ पैगम्बर आप इस तरह दुआ करें, ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू मुझे वो चीज़ें दिखा दे जिसका तूने उनसे वादा कर रखा है, यानी अगर मेरी ज़िंदगी में ही इन पे अज़ाब आ जाए। तो क्या मतलब है मा तुरियन्नी मा युअदून, कि मेरी ज़िंदगी ही में उन पर अज़ाब आ जाए। और रब्बी फला तजअलनी फिल कौमि ज़ालिमीन, तो है मेरे परवरदिगार न ठहराना मुझे उन लोगों में जो जालिम है, यानी जब तेरा अजाब आए तो मुझे इन लोगों से अलग करना। हदीस शरीफ में भी ये दुआ सिखाई गई है, ए मौला करीम इज़ा अरदत बिक़ौमिन फितनतन फतवफ़्फ़नी इलैका गैर मफ्तून, जब तू किसी कौम के साथ फितना या आजमाइश का इरादा करे तो मुझे ऐसी हालत में अपनी तरफ उठा ले कि मैं फितने में मुब्तला ना हूँ। यहाँ भी अल्लाह ने अपने नबी को यही दुआ सिखाई कि अज़ाब के वक्त आप इन जालिमों से अलहदगी की दरख्वास्त करें। बाज़ औक़ात जब कोई मुसीबत आती है तो फिर किसी ख़ास व आम को नहीं छोड़ती, मुनकिरीन अहले ईमान सब उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस दुनिया में तो बाज़ तो नाकर्दा गुनाह हो की सज़ा भी मिलती है, तुम युबअसून अला नियतिहिम, मगर जब क़यामत को दोबारा उठेंगे तो अपनी नीयत और अक़ीदे के मुताबिक उठाया जाएगा उनको। उस दिन इताअत गुजार लोग उस सज़ा से महफूज होंगे जिसमें मुनकिरीन मुब्तला होंगे। वइन्ना अला अन नुरियका मा नइदुहुम लक़ादिरून, बेशक हम इस बात पे कादिर है कि आपको वो चीज़ दिखा दे जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि वादा तो नाफरमानों से सज़ा का ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ये सज़ा आपको अपनी की ज़िंदगी में दिखा सकते हैं। चुनांचे बात चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी में दिखा दी। आपकी हयात तय्यबा ही में कुफार और मुशरिकीन को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, उन्हें मुसलसल शिकस्त हुई, हत्ता कि आपकी ज़िंदगी में पूरा जजीरतुल अरब जो है मुशरिकीन से पाक हो गया। सरदारान मुशरिकीन मारे गए और बाकियों ने इस्लाम कबूल किया, और फिर आपके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में कुफार और मुशरिकीन मुकम्मल तौर पे मगलूब हो गए, हत्ता कि दुनिया भर में ईमान वालों की तरफ बुरी नज़र उठा के देखने वाला कोई नहीं था। तो इरशाद हुआ कि मुशरिक लोग आपको तरह तरह की तकलीफ़ें जो है वो देते हैं, आपको जिस्मानी ज़हनी तौर पे परेशान करते हैं, मगर उनकी बुराई का जवाब बुराई से देने की बजाय इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु सय्यिअ नहनु अअलमु बिमा यसिफून, इस बुराई का दिफा नेकी और अच्छाई के साथ कीजिए। मुशरिकीन के बद अखलाकी के मुकाबले में आप उनके साथ खुश अखलाकी से काम लें, नरमी से काम लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बद अखलाकी की इजाज़त कभी नहीं दी। अलबत्ता आप तबलीग दीन का काम करते रहें, उसमें कमी ना आने दें। आप फिक्र न करें, नहनु अअलमु बिमा यसिफून, हम उनकी करतूतों को खूब जानते हैं। ये लोग जिस कदर कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, तान और मलामत करते हैं, गालियाँ देते हैं, अज़ियतें पहुँचाते हैं, वो सब हमारे इल्म में है, हम खुद इनसे निपट लेंगे। मगर आप इनकी हर बुराई का जवाब नेकी के साथ दें, इसका नतीजा ये होगा कि ये लोग भी नरम पड़ जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा और फिर कामयाबी भी आप ही के हिस्से में आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि जिस चीज़ में सख्ती दाखिल हो जाती है वो उसको बिगाड़ देती है, जिस चीज़ में नरमी पाई जाती है वो उसको जीनत बख्शती है।
اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہر کام کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تعلیم اور تربیت کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنا بہترین ہتھیار ہے، لیکن جہاں پہ نفاذ حدود کا تعلق ہے وہاں کسی قسم کی نرمی جائز نہیں ہے، بلکہ مجرم کو پوری پوری سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے جو ہے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نفاذ دین کے معاملے میں تمہیں ان پہ کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 100 کوڑے مارنے کی سزا غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے ہے، جبکہ شادی شدہ مرد و زن کی صورت میں ان کی سزا جو ہے سنگساری ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بعض اوقات بعض نو مسلم صحابہ کی زبان سے بے ادبی کی باتیں نکل جاتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا، کسی کو سختی سے جواب نہیں دیا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض ایسی باتیں سرزد ہو گئی تھی، مگر ان کو پیار سے ساری بات سمجھا دی۔ آخر ان کو کہنا پڑا فواللہ ما رأیت معلما قبلہ، خدا کی قسم میں نے ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا نہ برا بلا کہا، بلکہ میری ہر درستگی کا جواب نہایت عمدہ طریقے سے دیا، ہر عمل کا جواب نہایت عمدہ طریقے سے دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ برائی کا دفاع اچائی کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم سے کوئی بد اخلاقی یا برائی کی بات ہو جائے تو اس کو نیکی کے ساتھ ہٹاؤ، ہر برائی کے پیچھے نیکی لگا دو، اگر ایسا کرو گے تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں گی۔ اگر برائی کا جواب برائی سے دو گے تو برائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں بعض اوقات جو ہے بحث مباحثہ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان وسوسہ اندازی کر کے غصہ دلانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو یہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معاملات سے اکثر واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو یہ دعا سکھائی، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین۔ اے پیغمبر آپ اس طرح دعا کرے کہ اے میرے پروردگار، میری تیری ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ شیطان سے ہر موقع پہ استعاذہ کرنا چاہیے، چنانچہ آپ نے یہ استعاذہ بھی سکھلایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ، کہ اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود کی چھیڑ چھاڑ سے، اس کے تکبر سے، اس کے سحر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جاتا ہے تو شیطان اس کے اعضائے مستورہ سے کھیلتے رہتے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء جاتے وقت اس طرح استعاذہ کرنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر اور مادہ شیطان سے تیری ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ تو فرمایا ایک تو شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے پناہ مانگے، اور یہ بھی کہے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہو، نہ وہ میرے پاس آئیں گے اور نہ وسوسہ اندازی اختیار کریں گے، اس لیے میں شیطان کی شر سے محفوظ رہوں گا۔ تو فرمایا کہ آپ دعوت دین کا کام کرتے رہیں، اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر مرنے کے بعد انہیں سخت حسرت ہوگی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی تو ہر کافر مشرک اور نافرمان کہے گا رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ نافرمانوں کی یہ تمنا عالم برزخ میں بھی ہوگی، اور اس خواہش کا اظہار وہ آخرت میں بھی کریں گے۔ سورۃ المنافقون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر لیتا، نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ لیکن ادھر سے جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مگر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ
किसी को मोहलत नहीं देता। अल्लाह ताला का आम कानून भी यही है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मुकर्रर वक्त आ जाता है तो न एक घड़ी देर कर सकते हैं न जल्दी कर सकते हैं। जब इन लोगों को मौत आ जाती है तो फिर ये तमन्ना करते हैं कि मौला करीम हमें वापस लौटा ले, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ताकि मैं कुछ नेक काम कर लूँ उस चीज़ में जो मैंने पीछे छोड़ी है। पीछे छोड़ी जाने वाली चीज़ों में एक तो ईमान है, इसको उसने दुनिया ही में छोड़ दिया, और उसे अल्लाह के रास्ते में दूसरा चीज़ जो है वो माल है, जो दुनिया में छोड़ के आया लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया। अब तमन्ना करता कि मौला करीम मुझे दुनिया में वापस भेज दे, मैं तेरी वहदानियत और वक़ूअ क़यामत पे ईमान ले आऊँगा, तेरे दिए हुए माल में से तेरे रास्ते में खर्च करूँगा। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, कल्ला, खबरदार, हरगिज़ नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। इन्ना कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये एक बात है जिसको वो कहने वाला है, ये उसकी तमन्ना ही तमन्ना है, सिर्फ आरजू है जो कभी पूरी नहीं होगी। सूरह अंबिया में वाज़े आ चुका है अन्नहुम ला यरजिऊन, कि वो दुनिया में वापस नहीं आ सकेंगे, जो एक मरतबा चला गया उसकी वापसी नामुमकिन हो गई। वमिन वराइहिम बरज़ख, और उनके आगे एक पर्दा है, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। मतलब ये कि अब उन्हें क़यामत तक इसी बरज़खी ज़िंदगी में रहना होगा। वरा का लफ्ज़ अज़दाद में से आगे और पीछे दोनों माना में इस्तेमाल होता है। जब इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर पीछे आने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, अलबत्ता उनके आगे बरज़ख या पर्दा है दोबारा उठाए जाने के दिन तक। जब सूर इसराफील फूंका जाएगा तो फिर सब दोबारा उठेंगे, उस वक्त उनके आगे पर्दा है। तो आलम बरज़ख दुनिया और आखिरत का दरमियानी जहाँ है, इन तीनों जहानों के अहकाम मुख्तलिफ है। मुफस्सिर कुरान क़तादा फरमाते हैं कि बरज़ख का जहाँ बक़ियतुद्दुनिया, यानी इस दुनिया का बकिया मानदा हिस्सा है। शाह वलीउल्लाह भी बरज़ख के मुतालिक फरमाते हैं, बक़ाए हाज़ल आलम, कि ये इस जहाँ की बकाया में से है। वहाँ के मुशाहदात साफ नज़र नहीं आती, बल्कि ऐसे नज़र आते जैसे कोई जाली के पीछे से धुंधली सी चीज़ नज़र आए। और फिर जब हशर बर्पा होगा, आलम बरज़ख ख़त्म हो जाएगा तो फिर हर चीज़ साफ नज़र आने लगेगी। आलम बरज़ख में भी सज़ा और जज़ा मिलती है, अगर वो मुकम्मल नहीं होती। असल सज़ा और जज़ा का कुछ नमूना होता है। इमाम इब्न कसीर ने हदीस नकल की कि आलम बरज़ख में बाज़ ज़ालिमों पे दो साम मुसल्लत कर दिए जाते हैं, एक सर की तरफ से काटता है, दूसरा पाँव की तरफ से, और ये अमल सूर इसराफील तक होता रहेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरी रिवायत में आता है कि बाज़ मुजरिमों पे 99 साम मुसल्लत किए जाते हैं, क्योंकि उसने अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक को भी याद नहीं किया होगा। शाह से फरमाते हैं कि ये आलम बरज़ख में इंसान बिल्कुल इनफरादी ज़िंदगी गुजारेगा। चूँकि इनफरादी ज़िंदगी के अहकाम मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए बरज़खी ज़िंदगी में भी उसी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें ही मुफीद होंगी। अगर दुनिया में उसका अकीदा और फ़िक्र पाक थी तो बरज़ख में राहत हासिल होगी, और अगर उसमें ख़राबी थी तो फिर सज़ा भी मिलेगी। हशर के बाद जब सब लोग दोबारा उठाए जाएंगे तो फिर इज्तिमाई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। उस वक्त के अहकाम भी मुख्तलिफ होंगे। उस दिन हर कौम के मुजरिमों को उनके जराइम की नौइयत के अतबार से अलग-अलग कतारों में खड़ा किया जाएगा, और उस दिन कतई फैसले होंगे। हर शख्स को उसके अकीदे और अमल की बुनियाद पे सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल अल्लाह ने चाहा ये हमारी सूरत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और फिर उसके बाद पीर वाले दिन जो है सूरत नूर का आगाज़ करेंगे। पीर वाले दिन क्या करेंगे? सूरह नूर का आगाज़ करेंगे।